1 year बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। 2 तिमोथी 1 चैप्टर 26 वर्स तक, 2 तिमोथी 2 चैप्टर 1 वर्स से 26 वर्स तक, और जरमिया 19 चैप्टर 20 चैप्टर 21 चैप्टर 22 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। 2 तिमोथी 2 अध्याय 1 वचन से 26 वचन तक, यिर्मयाह की भविष्यवाणी 19 अध्याय 20 अध्याय 21 अध्याय 22 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से और हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। 2 तिमोथी 2 चैप्टर 1 वर्स से 26 वर्स हम किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। तिमोथी 2 चैप्टर 1 वर्स से 26 वर्स किंग्स जेम्स वर्जन में से। Timothy exhorted to constancy and perseverance. First verse, though thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men. रिबांताश किरबखंदरा हासा। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो कि कुछ भी वचन हम खाली हाथ लौट कर ना आए, हम भरपूर होकर आए, आनंदित होकर आए। हम चर्चाओं में तेरे वचनों का भेद निकाल कर उसकी उन्नति में हम मजबूती से बढ़ते जाए, फैलते जाए, फलते जाए, फूलते जाए। इस प्रकार का अनुभव हमारे अंदर आज वचन पढ़ते समय देने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। हमारी समझ, ज्ञान, बुद्धि खोल दीजिए। हमारे 5 सेंसेस तेरे वचनों को समझ पाए। हमारा शरीर, प्राण, आत्मा तेरे वचनों के अधीन रह सके और पवित्र और शुद्ध जीवन से परमेश्वर को भाता हुआ, आनंदित करता हुआ जीवन हम जी सके। ऐसा अनुग्रह आज इन वचनों में से हमारे जीवन में कर। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। 2 वर्स, चलो फर्स्ट शुरू से पढ़ेंगे। चैप्टर 2, Timothy exhorted to constancy and perseverance. First verse, thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned, except he strive lawfully. The husbandman that laboureth must be first partaker of the fruits. Consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel, wherein I suffer trouble as an evildoer, even unto bonds, but the word of God is not bound. Therefore I endure all things for the elect's sakes, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. It is a faithful saying, for if we be dead with him, we shall also live with him. If we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. If we believe not, yet he abideth faithful, he cannot deny himself. Of these things put them in remembrance,
charging them before the Lord that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearers. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness, and their word will eat as doeth a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus, who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already, and overthrow the faith of some. हम 5th वचन से और एक बार पढ़ेंगे. And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned, except he strive lawfully. The husbandman that laboureth must be first partaker of the fruits. Consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. देखिए एक खास बात है यहाँ पर, हम कंसीडर तक ही काम कर सकते हैं, यानी हम सिर्फ वचनों को सुनने का काम कर सकते हैं, लेकिन वचन को समझने का जो हरकत है वो परमेश्वर ही कर सकता है हमारे जीवन में. समझा? हम सिर्फ पढ़ सकते हैं वचनों को, लेकिन उसकी समझ हमको आना केवल परमेश्वर की ओर से होता है. तो जब भी आप पढ़ रहे हो और समझो आपको वचन समझ नहीं आया है, तो आपको इंतज़ार लगाना है पवित्र आत्मा आपको वो वचन समझाए. और जब वो वचन आपके समझ में आता है तो अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करना है. आपकी ताकत से आप नहीं समझ सकते वचन को, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं. लोग बोलते हैं ऐसा कि अभ्यास करते हैं, डिग्री लेते हैं, बाइबल का कॉलेज में एक सब्जेक्ट बोल के पढ़ते हैं. वो वाला तरीका जो है, पढ़ने का तरीका जो है, उसके अंदर पवित्र आत्मा मौजूद नहीं है. वो एक अभ्यास के तौर पर, जैसे एक अलग अलग प्रकार के अभ्यास किए जाते हैं, वैसे ही ये एक वचन का अभ्यास किया जाता है, तर्क वितर्क से और वाद विवाद करके, और टुकड़े टुकड़े उसके निकालते हैं, ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं, जोड़ते हैं, समझते हैं. अपनी ताकत, अपनी बल से वो कर रहे होते हैं, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहता है. ओके तो जब हम परमेश्वर के वचन को समझने के लिए अगर आप चाहते होंगे कि आप परमेश्वर के वचन को समझे, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का, पवित्र आत्मा आपको समझाता है. और जब वो समझाता है तो वो प्रभु यीशु के बेनिफिट में आपको समझाएगा कि आप प्रभु यीशु के लिए लाभदायी उपयोग कर पाए वचनों का. बस वहाँ तक आपको वो समझाएगा. हालेलुया. तो हम वचन जो अभ्यास करते हैं वो सारे रंग वचन के यहाँ वहाँ से सीखते हैं कॉलेज में. हाँ, जो बाइबल कॉलेज में, या मतलब जो डिग्री लेते हैं, बाइबल स्टडी थियोलॉजियन डिग्री जिसको कहते हैं, BTH. ओके तो यहाँ वहाँ से वो सारे कलर्स जो है वचनों के अंदर के हर एक माहौल जो है वो सब एक एक करके वो सीखते जाते हैं. कौन से समय में क्या हुआ था, कौन से समय में कैसा था, अब क्या है, अब कैसे है, अब आगे आने वाला कैसा है. ये केवल एक अभ्यास के रूप में पढ़ते हैं वो लोग. ओके और वो तर्क वितर्क करते हैं, उसके ऊपर अपने विवाद लगाते हैं, विवाद करके कुछ बातों को खंडन कर देते हैं, लोगों को रोक देते हैं, नहीं ये वचन तो ऐसा है, ऐसा नहीं है, वैसा है, ऐसे कर देते हैं. ओके क्योंकि उनके ज्ञान इंद्रिय उन्होंने जो तर्क वितर्क से किया हुआ है उसका परीक्षण, उसमें से ही वो वचन के भेद अब तक समझे हुए हैं. लेकिन वो मसीह के बेनिफिट में नहीं उतर कर आता है. अगर मसीह के बेनिफिट में उनको उतर कर आना है तो उनके अंदर एक ही चीज़ है उनको मसीह के बेनिफिट में लेकर आने का, वो है पवित्र आत्मा. हालेलुया. पवित्र आत्मा के अलावा कोई भी नहीं है जो आपको वचन सिखा सकेगा. समझ में आया? तो अगर आप मसीह के लिए लाभदायी नहीं बन रहे हैं और सिर्फ वचन पढ़ रहे हैं, तो वो आपकी ही शारीरिक शक्ति है जो आपको वो वचन को लेकर कुछ सिखा रही है.
लेकिन अगर आप वचन सीख रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, और फिर आप मसीह के लिए लाभदायी बन रहे हैं, उस वचन को समझने के बाद जब आप मसीह को लाभदायी हो जाते हैं, उसके लिए आप फायदेमंद हो जाते हैं, उसके कारण उसको आप सराहने में तेज बन जाते हैं, उसको प्रसन्न करने वाले जीवन में जीने में आप तेज बन जाते हैं, आपकी गति बढ़ जाती है उस दिशा में जिसमें परमेश्वर पसंद करता है रास्ते, उस रास्ते में आपका चुनाव ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। तो समझ जाना है ये पवित्र आत्मा है। ओके लेकिन अगर आप सीख तो रहे हैं वचनों को, लेकिन आप उसको काम करने में नहीं लगा रहे हो, तो आपको समझ जाना है कि ये आपका तर्क वितर्क आपको सिखा रहा है। ठीक है, आपके शरीर की शक्ति आपको, आपकी खुद की बुद्धि आपको सिखा रही है। तो आपकी खुद की बुद्धि कभी परमेश्वर के काम करने में वचनों का इस्तेमाल नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बुद्धि को सिर्फ ज्ञान की लालसा है। हव्वा ने कौन सी फल खाए? ज्ञान का फल खाया, और उसने क्या बोला? सच में ये बुद्धि देने योग्य फल है। तो क्या उसके पास बुद्धि नहीं थी? बुद्धि थी, लेकिन उस बुद्धि का उसको लालच आ गया जो उस ज्ञान के फल में था। ओके, तो वो ज्ञान का, भले बुरे का ज्ञान जो है वो शरीर की भूख है। शरीर हमेशा भले बुरे ज्ञान की खोज में लगा रहता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ओके, बस उसके पीछे लगा रहता है। वो अपने शरीर के फायदे के लिए अच्छे बुरे ज्ञान के पीछे लगा रहता है। तो वो एक लालसा है, वो एक वासना है, वो एक अतृप्त होने वाला नशा है। ठीक है, आप कितना भी ज्ञान भंडार कमा लो तो भी आपको फिर दूसरा कुछ नया ऐसा समझने का अवसर मिलेगा तो आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो अतृप्त दिशाएं हैं। ओके, लेकिन जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे और अगर पवित्र आत्मा आपको समझा देता है उस वचन का मकसद, तो आप उस वचन को तुरंत अपने अंदर लेकर, तसल्ली आ जाती है आपके अंदर, और उसको लेकर फिर आप मसीह के अंदर 2 कदम ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। समझ में आया? मसीह के विश्वास में 2 स्तर और ज़्यादा ऊंचे उठ जाते हैं। हाँ, मसीह के अंदर आपकी उन्नति प्रकट करने में लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप वचन जो पढ़ रहे हैं वो रूट आपका बन रहा है, ग्राउंड आपका बन रहा है, मजबूती आपकी बन रही है, और बनाने वाला वो कौन है? पवित्र आत्मा है। स्पष्ट रूप से यहाँ पर मालूम पड़ जाता है। इसके लिए मैंने आपको दोबारा वचनों के पीछे लेकर आई, 5 वचन से दोबारा पढ़ाया मैंने। देखिए 8 वचन से आगे पढ़ेंगे। रिमेंबर दैट जीसस क्राइस्ट ऑफ द सीड ऑफ डेविड वॉज रेज्ड फ्रॉम द डेड अकॉर्डिंग टू माई गॉस्पल, वेयर इन आई सफर ट्रबल एज एन evil doer, even unto bonds, but the word of God is not bound. Therefore I endure all things for the elect's sakes, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Okay? ये सारी बातों का भेद वो बता रहा है, पौलुस, प्रेरित पौलुस बता रहा है। 10 वचन वो भेद बता रहा है, हम क्यों सहनशील होकर परमेश्वर के वचनों के अधीन बने रहना है, इसका कारण है। ओके, 11 वचन आगे, 11 वर्ष से आगे। It is a faithful saying, for if we be dead with him, we shall also live with him. If we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. If we believe not, yet he abideth faithful. He cannot deny himself. Of these things put them in remembrance, charging them before the Lord that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearers. Study to show thyself approved unto God. देखा, तो हम अभ्यास करना है पवित्र वचन का, लेकिन अभ्यास का जड़ क्या होना चाहिए? कि हम परमेश्वर के द्वारा निश्चितता के रास्ते पकड़ पाए। हाँ, सिद्धता की ओर हम अपने पैरों को उठाते हुए चलते जाए। हाँ, God a workman that needed unto God a workman that needed not to be ashamed,
rightly dividing the word of truth. ओके तो हमारे जीवन में सीखने के लिए, अभ्यास करने के लिए परमेश्वर का कमांडमेंट है हमारे ऊपर कि हमने वचनों को सीखना है, लेकिन उस अभ्यास की तरह नहीं जैसे थियोलॉजियंस सीखते हैं वाद विवाद करते हुए, वचनों को तोड़ तोड़ कर अलग अलग रूप में उसे देख देख कर निकालते हैं उसके भेद क्या है, उस तरह का नहीं। हमको ज़रूर पढ़ना है, वचन सीखना है, लेकिन हमारी जड़ पकड़ने के लिए कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला निश्चितता का जीवन जी पाए। आगे देखिए क्या है, स्टडी टू शो thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth, but shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness, and their word will eat as doeth a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus, who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already, and overthrow the faith of some. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Hallelujah. जब आप पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन प्राप्त करने लगते हैं, तब दूषित कामों से आप खुद जिम्मेदारी उठाना है, आप टूटकर अलग जीवन जीना है। जो भी अशुद्ध काम है उससे आपको खुद होकर जानबूझकर आपने ऐसे दूषित करने वाले कामों से अपने आप को तोड़कर अलग करके रखना है, क्योंकि अब क्या होने लगा है, अब आपके अंदर भेद बढ़ने लगा है मसीह का। हाँ, वो भेद आपको क्या करना है, परमेश्वर के बेनिफिट में उतार कर लेकर आना है। परमेश्वर के बेनिफिट को उतार कर लाने के लिए कौन चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा अशुद्ध बातों से खेदित हो जाता है, अधर्म के कामों से खेदित हो जाता है, दुष्टता के कामों से खेदित हो जाता है, अनाज्ञाकारिता के कामों से खेदित हो जाता है। फिर एक लंबा समय वो आपको अवसर देने में छोड़ देता है कि जाओ ठीक है और करो दुष्टता, कोई बात नहीं है, और जितना मन चाहे मन भर के कर लो दुष्टता। जब मन भर जाए और फिर पीड़ाएं उठने लगे आपके जीवन में, तब दोबारा मुझे पुकार लेना, फिर मैं आ जाऊंगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से फिर हमारा कुछ समय बुरे असर में चला जाता है, और यही तो है फिर दुष्ट आत्माओं के काम करने वाले क्यों हमको सताते हैं, ताकि हमारी दुष्टता की चलना शुरू हो जाए। हाँ, अधर्म के कामों में हमारी शुरुआत हो जाए, हमारे अंदर गुस्से पनपने लगे, हमारे अंदर बैड वर्ड्स निकलने लगे, हमारा हृदय कड़वा रहने लगे, छटपटाहट, फ्रस्ट्रेशन, उग्रता, एग्रेसिवनेस, वायलेंस हमारे अंदर भरपूर एनर्जेटिक हो जाए, ताकि परमेश्वर के शुद्ध जीवन को हम खो दें। हालेलुया। और शुद्ध जीवन हम खो देने से फिर ये इंस्ट्रक्शंस हमको नहीं आते हैं, फिर ये पवित्र आत्मा के इंस्ट्रक्शंस हम समझ नहीं पाते हैं, और तब जब पवित्र आत्मा बोलता है अरे विपत्ति है आगे, अरे विपत्ति है आगे, कौन मानता है उसको? हालेलुया। क्योंकि हम तो भ्रष्ट का, निश्चितता का जीवन छोड़कर भ्रष्ट का जीवन में चलना शुरू कर दिए हैं। तो यह काम कहाँ से शुरू किया, किसने शुरू किया? दुष्ट आत्माओं को लगाकर, जो करनिया करते हैं, अशुद्ध काम करते हैं, उन लोगों के द्वारा आप हम सबके ऊपर इन अशुद्ध कामों का ज़्यादा असर आने वाला रास्ता दे दिया। बारंबार 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 आपके ऊपर थोपते जाते, फिर आप क्या कर जाते हैं? दुष्टता के रास्ते पकड़ लेते हैं, अधर्म के रास्ते पकड़ लेते हैं, क्रोध पकड़ लेते हैं। हाँ, फिर उनके दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर से प्रकट होने लगती है। हम गुस्सैले हो जाते हैं, हम बड़बड़ाने वाले हो जाते हैं, हम लापरवाह हो जाते हैं, हम केयरलेस हो जाते हैं, हम भुलक्कड़ हो जाते हैं। हमारी निंदा होगी, ऐसी बातें हम करने लगते हैं, हमें तुच्छ जाना जाएगा, इस प्रकार के हमारे कैरेक्टर हम चला लेते हैं। ये सब कहाँ, ये क्या हो गया? दूषित परिणाम हमारे अंदर से दुष्ट आत्माओं के किए कराए शुरू हो गए।
समझ में आया? तो ये काम से हमको छटपटाकर अपने आप को छुड़ा लेना है। हाँ, क्या ये असर नहीं करेंगे क्या आपके ऊपर? हाँ, करेंगे ये असर, लेकिन आपने जैसे ही उसकी भनक लग जाए कि अच्छा तो ये शुरू हो चुका है ऐसा गंदा करने का काम, भ्रष्ट करने का काम, कोई बात नहीं है। हमने उसमें से छटपटाकर परमेश्वर के चरणों में अपने आप को गढ़ कर रखना है, बांध कर रखना है। निश्चितता का रास्ता हमने, परमेश्वर के धर्म, प्रेम, न्याय, सच्चाई का रास्ता, विश्वास, योग्यता रहने के रास्ते हमने नहीं छोड़ना है। हाँ, तो ये एक क्या बोला है, पल भर का क्लेश रहता है। पल भर के क्लेश को आपने किस प्रकार से निपटना चाहिए, इसकी तो आपने खुद हो के तैयारी रखनी है, तो आप बुरे समयों का सामना कर पाओगे। हालेलुया। तो आप उसके बारे में बेफिक्र रहोगे, लापरवाह रहोगे, तो ये तो समय आपको पकड़ने ही वाले हैं, ये तो समय आपको झपटने ही वाले हैं, तो इससे थोड़ी हम डरते हैं। हाँ, इस समयों से हमको निपटने की तैयारी सीख लेनी चाहिए, ताकि ये समय हम पार करके दोबारा अपने रास्ते निश्चितता में बिना ढले बिना टले पकड़ कर उठ जाए, और जो परमेश्वर का आत्मा हमको दे रहा है उस संगति का लाभ भी मज़े से उठा सके। हालेलुया। ये तो पार्टियां चलती है जब परमेश्वर के वचन को लेकर हम सीख रहे होते हैं, तो ये कौन गवाएगा है ना, ये कौन छोड़ेगा? ये इतना बड़ा पार्टी का सेशंस है, ये कैसे क्या कोई खो सकता है ना? इस प्रकार से हमको ये वचनों का पालन करते हुए पवित्र आत्मा के इंस्ट्रक्शंस का आवाज़ खोना नहीं है, इसकी दक्षता हमने रखनी है, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान हमने रखना है, और जल्दी मन बदल कर परमेश्वर में झपट कर आ जाना है। मन तोड़कर, दुष्टता में से मन तोड़कर अलग होकर आ जाना है। कोई बात नहीं है, चलो छोड़ दो उन बातों को, निकलो बाहर यहाँ से और चलो प्रभु में घुस जाओ, प्रभु के अंदर घुस जाओ, प्रभु के आराधना में घुस जाओ, प्रभु के मनन करने में घुस जाओ, परमेश्वर के आत्मा के अगुवाइयों में। ऐसे अपने आप को खदेड़ कर निकाल लेना है अधर्म के कामों में से, दुष्टता के रास्तों में से, जो दुष्ट आत्माओं के घेराव के कारण हम पर हावी होने के लिए आते हैं। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे। But in a 20 verse से आगे, but in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor. देखो, अगर हम लापरवाह नहीं रहेंगे अशुद्ध बातों से, अशुद्ध बातें पवित्र आत्मा का खंडन करने के लिए आती है हमारे जीवन में। अगर पवित्र आत्मा का खंडन कर दिया, रोक लग गया पवित्र आत्मा का काम का हमारे जीवन में, तो फिर बाकी क्या रह गया हमारे जीवन में? अशुद्धता हमको कुछ नहीं देने वाली है। तो अशुद्धता में आप जितना आपको समझ आ जाता है कि ये अशुद्धता का वातावरण कोई दे रहा है, हमको झटके लगाकर छुट लेना है, उसके अंदर से निकल लेना है, छुड़ा लेना है अपने आप को और परमेश्वर में घुस जाना है। हालेलुया। ये घुस जाना है हमने परमेश्वर में, ये कोई आसान बात नहीं है। ओके, जो परमेश्वर का रास्ता है उसके अंदर अशुद्धता रुक नहीं पाती है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर में छुप जाते हैं, अपने आप को परमेश्वर में छुपा लेते हैं, खत्म हो गया। अशुद्धता का असर आपको आने वाले पवित्र आत्मा के इंस्ट्रक्शन से अशुद्धता आपको रोक नहीं पाएगी। हालेलुया। आप मजबूती से आपके समयों के अंदर परवाह रखते हुए, परमेश्वर का ध्यान रखते हुए चलते जाएंगे। हालेलुया। तो ये अवसर रहता है जहाँ पर आप अशुद्धता को मुकाबला करके परमेश्वर में ठहर कर फिर आगे निकलना पड़ता है। हाँ, तो ये परीक्षाओं से हमको डरना नहीं है। परीक्षा इट्स ओके, ये तो लताड़ने के लिए ही होती है और ये कुचलने के लिए होती है। इसके लिए इसके अंदर से कोई हमको रिएक्शंस नहीं देना है, इसको लताड़ना है, कुचलना है, फेंक देना है, तुच्छ जानना है, डिक्लेयर कर देना है, शैतान तू हारा हुआ है, तेरा कोई मतलब नहीं है मेरे पास, हट जा, भाग जा, निकल जा यीशु के नाम में, और आगे निकल जाना है। हमने परमेश्वर में छुप जाना है दोबारा से। हालेलुया। देखो, हम आगे बढ़ेंगे। sanctified and meet for the master's use and prepared unto every good work।
Flee also youthful lusts, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. But foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender strifes. And the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, apt to teach, patient, in meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. देखिए, in meekness, instructing that those that oppose themselves. देखो, ध्यान दीजिए, जब मैं हिंदी में आपको बताऊंगी, जब मैं इसको हिंदी में पढ़ूंगी, ओके, एंड दैट दे मे रिकवर देमसेल्व्स आउट ऑफ द स्नेयर ऑफ द डेविल हु आर टेकन कैप्टिव बाय हिम एट हिज विल. ये लास्ट के 2 वचन आप हिंदी में सुनना, मैं जो बताऊंगी आपको, ओके, हिंदी में पढ़ेंगे. दूसरे तीमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय पहले वचन से 26 वचन तक पढ़ते जाना है, यानी पूरा अध्याय हम पढ़ेंगे. दूसरे तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय पहले वचन से. मसीह यीशु का स्वामी भक्त सैनिक इसलिए है, पहले वचन से, इसलिए है मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा. क्यों माय डियर फ्रेंड्स, क्यों बलवंत होना है? क्योंकि अटैक्स आते हैं. हाँ, विश्वास को डगमगा देने वाले परिस्थितियां उपज कराती है. समझ में आया? क्योंकि सामना करना पड़ता है हमको नेगेटिव बातों का, ओके, अशुद्ध बातों का, अधर्म के बातों का. तो क्या बोला है, किससे बलवंत हो सकते हैं आप? अनुग्रह से जो यीशु में है. जब प्रभु के चेला ने बोला था मेरे अंदर से ये कांटा है निकाल दे, हाँ, ये मुझे परेशान कर रहा है, तो वचन उसको जवाब में क्या मिला? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है. हाँ, अब यहाँ पर भी आपको जवाब क्या है? उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है. समझ में आया? तो अनुग्रह कौन है? परमेश्वर का आत्मा है. हाँ, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, जो दया का आत्मा, जो पुनरुत्थान का आत्मा है. एक ही पवित्र आत्मा अलग अलग तरीके से उसके काम वो दिखाता है. समझ में आया? आप बोलेंगे वो भविष्यवाणी का आत्मा है. एक ही है वो आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पुनरुत्थान का आत्मा, लेकिन काम कौन सा दिखा रहा है? चंगाई का, भविष्यवाणी का. इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के काम दिखाता है वो. लेकिन आत्मा कितना है? एक ही है, पवित्र आत्मा, पुनरुत्थान का आत्मा. तो आप में मिल बांट कर सब कुछ एक आत्मा के द्वारा ही मिलता है, और एक आत्मा से ही हम सब मसीह भाई बहन जन्मे हुए हैं. तो एक ही आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारा पिता है. ओके, हम उसकी मानते हैं, वो हमको सिखाता है, और वो हमारे अंदर वो सब कुछ बलवंत करके रखता है कि आप उसी के मार्ग में बने रहो. जब आपका समय खराब होता है उस समय भी आप झपट कर उसी मार्ग में बने रहो जिस मार्ग में परमेश्वर के वचन आपको रहने के लिए कहता है. हाँ, तो आपको जोर की ज़रूरत है, आपको ताकत की ज़रूरत है युद्ध करने के लिए. ओके, आपको मजबूती की ज़रूरत है फाइट करने के लिए. ओके, शारीरिक लड़ाई भी योद्धा जब करने निकलता है तो वो अपने बल को बनाकर निकलता है ना, अपने हथियार को बनाकर निकलता है, अपनी बुद्धि को तेज करके निकलता है, अपने मसलों का सारा जायजा लेकर वो निकलता है. सब कुछ वो पॉजिटिव नेगेटिव अपने शत्रु का जानकारी रखते हुए निकलता है ना. तो ये शारीरिक अवस्था में बल है, तो आत्मा की अवस्था में भी तो आपको बलवंत रहने की ज़रूरत है. हालेलुया. और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो.
तो अब आपको जो आप सीखते हैं, तो कमज़ोर विश्वास में जो भी है, परमेश्वर का जन आपने उसको विश्वास में मजबूत करने के लिए सिखाना शुरू कर देना है। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हालेलुया। तो हमको इस जगत के अंदर, इस संसार के अंदर बहुत कुछ है जो आपका शरीर हुनर रखता है, हाँ, काबिलियत रखता है। आप बहुत होशियार है पढ़ाई के अंदर, आप बहुत बड़ी ऊंची डिग्री लेकर आप बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं, हाँ, या फिर आपके पास बहुत ज़बरदस्त ऐसा कुछ तो टैलेंट है जिसके साथ अगर आपने बिजनेस शुरू कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी हुनर है, अगर आपने उसको काम करने के लिए लगा दिया तो शायद से उसके द्वारा आपको बहुत कुछ नाम कमाने का रास्ता मिल सकता है। बहुत कुछ है, लेकिन ये संसार के अंदर इस शरीर की काबिलियत में पड़ा हुआ धन फायदे का नहीं है, हाँ, इसका कुछ हमको दी एंड में कुछ भी लाभदायी नहीं रहने वाला है। हाँ, आप चाहे शरीर के मुताबिक अपना समय बिताओ या फिर परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपना समय बिताओ, हाँ, दी एंड महत्व रखता है ना, दी एंड महत्व रखता है। तो शरीर के ताकत में जो काबिलियत रहती है, उस हुनर, उस काबिलियत का दी एंड डिस्ट्रक्शन से, हाँ, वचन जो काबिलियत रखता है, वचन जो चलेंगे, वचन का पीछा जो करेंगे, वचन के दायरे को महत्व देंगे, वचन के समय को महत्व देंगे, वचन के ऊपर अपना समय इन्वेस्टमेंट करोगे, अपनी ताकत वचन को लेकर जीने में इन्वेस्टमेंट करोगे, अपनी हुनर, अपनी टैलेंट, अपना बिजनेस, अपना व्यापार, अपने कामकाज, अपने प्रमोशंस, सब कुछ को उठाकर परमेश्वर के वचन के अंदर से होकर आप लेकर चलना शुरू करोगे, तो दी एंड आपको बहुत कुछ फायदेमंद भी रहेगा और टिकने वाला भी रहेगा। हालेलुया। तो आप ध्यान रखिए, आप जो भी करते हो आपका समय खा जाता है, हाँ, आप जो भी करेंगे, जो भी करो आपका समय ले लेता है। तो वचन को भी आपको समय देना पड़ता है, प्रार्थना को भी आपको समय देना पड़ता है। आप जैसे आपको नेचुरल अवस्था में भूख लगती है तो खाना खाना पड़ता है, प्यास लगती है तो पानी पीना पड़ता है। चलो आप 10 दिन 12 दिन जितना भी दिन आपने नहीं खाया पिया, तो भी एक दिन तो आ ही जाता है कि आपका शरीर जवाब देने लगता है और आपको दोबारा से सेहत बनाने में जुड़ जाना पड़ता है। तो सेहत बनाने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, फिर आपको समय लगाना पड़ता है, फिर आपको टाइम देना पड़ता है, आपको देखभाल करना पड़ता है ना। तो आप क्या करें, इन्वेस्टमेंट कर रहे कि आप दोबारा एक अच्छी सेहत को प्राप्त कर ले, सही है ना। तो इन्वेस्टमेंट तो होता ही है और समय जाता है उसके पीछे, हाँ, इसके पीछे आपको लापरवाही नहीं करना है, उसके पीछे आपका समय लग जाता है। तो वचन को भी तो लापरवाह नहीं करना है, तो आप वचन को ज़्यादा ध्यान देना है, वचन के मनन करने में ध्यान देना है, प्रार्थना में ध्यान देना है, और फिर बाद में बचा हुआ समय जो है उसमें आप जो कर सकते करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। लेकिन मेरे लिए तो ये रहता है कि मेरा दिन और रात वचन, उठते ही वचन को मनन करना हो जाता है और सोते समय भी वचन को मनन करते हुए सोना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास कुछ मकसद है, जो मकसद को मैं प्राप्त करना चाहती हूँ, ओके, जो प्रभु के राज्य के मकसद है, जिसको मैं छूना चाहती हूँ, ओके, मैं देखना चाहती हूँ कि वो मेरे जीवन में से भरपूर हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, उसमें कोई कसर ना रहे। हालेलुया। तो उस प्रकार के मकसद मेरे जीवन में है जो परमेश्वर के मकसद है, और मैंने उसे मेरे मकसद, मेरा पर्सनल मकसद बना के लेके परवाह रखते हुए हम चल रहे हैं। तो इसके लिए मेरे लिए तो ये समय ऐसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है परमेश्वर के राज्य में। लेकिन आप लोगों का अगर कहीं काम काज करते हो, कहीं आप फैमिली मैटर्स में हो, आप कहीं पर भी हो, जैसे भी हो,
ओके, पढ़ाई लिखाई में हो, कुछ भी हो, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपका समय ज़्यादा इन्वेस्टमेंट परमेश्वर के वचन सीखने में और परमेश्वर के कामों में मगन होने में, मनन करने में लग जाना चाहिए। आपका बाकी जो समय बचता है उसमें आप जो है वैसे करते जाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप परमेश्वर के वचनों में देना पड़ता है आपको। ठीक है, देखिए आगे क्या है। अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, है ना, तभी जाके आप समय जो जीवन के आते हैं उसको पार कर पाते हैं, तभी जाके विश्वास की रखवाली होती है, तभी जाके आप परमेश्वर के प्रसन्नता के जीवन जी पाते हैं, नहीं तो आप लड़खड़ा जाएंगे। हालेलुया। 5 वचन से आगे देखिए, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता है। ठीक है, जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। तो आप अगर मसीह बन चुके हैं और अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, या आप जॉब कर रहे हो, या आप बुजुर्ग हो, अपने समय को बुजुर्ग जीवन की जो परवाह कर किया जाता है उसमें आप बिता रहे हो, जो भी हो, जैसी भी उम्र की सीमा में आप हो, क्या ध्यान रखना है, परमेश्वर का वचन को आपने ज़्यादा अगर सीखा नहीं तो आपको वचन के दायरे मालूम नहीं पड़ेंगे, और वचन के दायरे मालूम नहीं है तो फिर आपका जीवन में जो परिश्रम का आपको मिलना चाहिए प्रतिफल वो नहीं आएगा। ओके, आपको वचन के दायरे में जब जीवन जिएंगे तभी जाकर आपका कुछ तो प्रॉफिटेबल रास्ता आपको मिल जाएगा। ठीक है, 8 वचन से आगे देखिए, यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। उत्तम कारीगर, 14 वचन से आगे, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करे, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। माय गॉड, देखिए, अब जब हम वचन के बारे में बातें करते हैं तो ये बात ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर डेंजर जोन है, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहा है, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। अभक्ति में बढ़ते गए तो फिर क्या फ़ायदा है हमारे बाइबल रीडिंग का, है ना। अगर हम अभक्ति बढ़ाने वाले बकवादी बन जाएंगे, अशुद्ध बकवाद करने वाले बन जाएंगे, तो हमारा बाइबल रीडिंग नहीं रहेगा, हम लोगों को अभक्ति में बढ़ाने वाले हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हमारे बाइबल रीडिंग में कुछ भी अगर अशुद्ध बकवाद है तो परमेश्वर हमको प्रकट करके देना चाहिए और हमको उससे बचा लेना चाहिए कि हम अशुद्ध बकवाद नहीं करना चाहिए। ओके, अशुद्ध बकवाद क्या होता है? तू मैं हो जाता है, या फिर वाद विवाद हो जाता है, या फिर किसी के बारे में निंदा चुगली, ये सब हो जाता है। ओके, लेकिन हम अपने रास्ते सुधार लाने के लिए हम सीखते हुए जा रहे हैं, तो हम एक दूसरे का उदाहरण तो दे देते हैं, लेकिन फिर उससे
से परमेश्वर के वचन के अनुसार वो अशुद्ध बकवाद नहीं बन जाना चाहिए, नहीं तो हम कौन से रास्ते निकल जाएंगे, अब भक्ति में बढ़ते जाएंगे। ओके, और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। ओ माय गॉड। देखिए अशुद्ध बकवाद क्या है, अब आगे आपको मालूम पड़ेगा। हुमिनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से है। ठीक है, तो अशुद्ध बकवाद को पहचानने के लिए हमने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा अशुद्ध बकवाद क्या है बता। तो अब देखिए हमारा ध्यान पवित्र आत्मा ने बताया अशुद्ध बकवाद में क्या क्या पड़ता है। देखिए हुमिनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से है, यानी हमको अशुद्ध बकवाद क्या है क्या है क्या है ऐसे ही भटकना नहीं पड़ेगा। हम समझ सकते हैं हुमिनियुस में क्या है और फिलेतुस में क्या है। यहाँ पर लिखा है क्या है, देखिए, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं। हालेलुया। हाँ, तो आज आपने रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में क्या पढ़ा कि सच्चाई से गलतियों की कलसियाँ भटक गई थी और अपोस्टल प्रेरित पौलुस जो थे उन्होंने क्या किया, बिनधास्त इस बात पर उंगली उठा लिया। हाँ, और उनको एकदम स्पष्ट रूप से आह्वान देकर बोला क्या कर रहे गलतिया के कलसिया, हाँ, अशुद्ध बकवाद में फंस गए हो, अब भक्ति में आप फैलते जा रहे हो सड़े घाव की तरह, है ना। तो ये प्रकार से आपको अशुद्ध बकवाद क्या है एग्जैक्टली मालूम पड़ जाता है। जो सच्चाई से अलग कुछ सिखाने लगता है वो अशुद्ध बकवाद है। हालेलुया। देखो, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं, और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। हाँ, कि हर चीज़ में आपको सच्चाई का विश्वास जो प्राप्त हो गया है यीशु मसीह के विषय में, अगर थोड़ा भी कोई उसके बारे में कुछ भी तोड़ मरोड़ कर आपको अलग विश्वास दिखाने लगता है, नहीं नहीं पवित्र आत्मा है ही नहीं, ऐ कम ऑन, क्या बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, विश्वास को उलट पुलट करने में लग गए हैं। अरे छोड़ो, सिर्फ यही बात है कि वो यीशु मसीह ही यहोवा और यहोवा ही यीशु मसीह, तो हम यहोवा की ही तरफ जाएंगे। विश्वास को उलट पुलट कर दिए। हाँ, क्या है, ये यहोवा कहता है मैं यीशु में हूँ, प्रभु यीशु कहता है प्रभु यीशु मसीह यहोवा में है, और पवित्र आत्मा उनमें है, पिता उनमें है, तो बस एक को किसी को मान लो। विश्वास को उलट पुलट कर दिया। समझ में आया। तो अगर परमेश्वर उल्टाना नहीं चाहता है विश्वास को, हम कौन बनते हैं उसके वचन के अंदर से कुछ भी तोड़ फोड़ करने के लिए। क्या किया परमेश्वर ने, आवाज सुनाई। दूसरा, पवित्र आत्मा को यीशु के ऊपर ठहराया जिसको यूहन्ना बपतिस्मा ने देखा। और तीसरा, प्रभु यीशु मसीह खुद वहां पर था। हाँ, तो क्या हम नहीं जान सकते कि त्रिएक तीन अलग अलग पर्सनालिटीज है जो एक मात्र हमारा परमेश्वर हो जाता है। क्या इतना हमको समझ में नहीं आता है? फिर हम क्यों सिर्फ एक ही के पीछे चले जाना है, सिर्फ यहोवा यहोवा यहोवा, या फिर सिर्फ यीशु यीशु यीशु, या सिर्फ पवित्र आत्मा है ही नहीं ये मानते हुए। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो ये सारा नहीं चाहिए हमको। क्या हम नहीं जानते हैं त्रिएक परमेश्वर मिलाकर एक परमेश्वर है? ठीक है, तो हम विश्वास में भटका देने वाले लोगों को कहते हैं अशुद्ध बकवाद करने वाले। समझ में आया? अशुद्ध बकवाद करने वालों के पीछे अगर हम चले जाएंगे तो अभक्ति में बढ़ते जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको अभक्ति की तरफ लेकर जाने वाला कौन है? जो आपके अंदर का बोया गया विश्वास है त्रिएक परमेश्वर का, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, वो आपको छुड़वा कर किसी और विश्वास में खड़े कर देते हैं। तो फिर आप समझ जाइए ये अशुद्ध बकवाद है जो आपको अभक्ति में चलाकर लेकर जा रहा है। ठीक है, आपने वो नहीं होना है। देखिए आगे क्या है, 19 वचन, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। ओके, जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। अगर हम कहते हैं अपने आप को यीशु मसीह के हैं तो फिर पूरी सच्चाई में बने रहिए, अधर्म से छुटकर, अधर्म की बातों से आज़ाद रहकर, दुष्टता के अशुद्ध बकवाद के टीचिंग्स में से आज़ाद रहकर,
हाँ, कोई भी आपको आपके अंदर के विश्वास को छू कर कमज़ोर कर नहीं पाना चाहिए। समझा? कोई आपको ये कबूल करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए यीशु तो कुछ काम ही नहीं करता है। यानी क्या हो गया फिर? आपके अंदर का विश्वास तक कोई पहुंच चुका, जिसने आपके विश्वास को कमज़ोर है आपको प्रूव करके दे दिया, और फिर आपने प्रूफ को ले लिया और आप बोल उठे कि यीशु तो कुछ काम ही नहीं करता है। ओके, तो ये क्या हो गया? अशुद्ध बकवाद को आपने ले लिया आपके अंदर, अभक्ति का वर्णन आपने अपने अंदर बढ़ा लिया। तो ये क्या हो जाएगा? अभी सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। समझा? आप सत्य से भटक गए जैसे हो जाते हैं उन लोगों के कारण, जिनके कारण से आपके अंदर ये, या कोई परिस्थिति के कारण, कुछ भी कारण से आप इस प्रकार के डायलॉग जब निकालते हैं, तब अभक्ति में आप चले गए होते हैं कि यीशु तो कुछ काम नहीं करता है। अभक्ति दिखाई देती है आपकी, और आपने अशुद्ध बकवाद में अपने आप को दिया है, ये भी पता चल जाता है। हाँ, आपके विश्वास को किसी ने गलत रास्ता देकर भटका दिया है, ये भी पता चल जाता है। समझ में आया? तो पक्की नींव कभी यीशु के विरोध नहीं जाएगी, ध्यान रखना। और यहाँ पर छाप भी लग चुका है परमेश्वर का। प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। वो जिम्मेदारी भी उठाता है अपने आप का, ठीक है, कि वो ऐसे बकवादों से दूर रहे जो विश्वास को कच्चा दिखाते हैं। 20 वचन से आगे, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील होना हो। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। देखा, ये वचन था जो मैंने आपके सामने लाना था, जो मैंने आपको इंग्लिश में पढ़ते समय आपको बोला था, हिंदी में इस बारे में सुनो मैं क्या बता रही हूँ। ओके, वह विरोधियों को, शैतान को नहीं, ये मुझे बताना था आपको। समझा? उसने क्या बोला? विरोधियों को, यानी जो मनुष्य विरोध में आपके खड़े हैं, उस मनुष्य के साथ बात करके नम्रता का व्यवहार रखते हुए यीशु के बारे में आप उनको मन फिराव का मन मिलने के लिए, सत्य को पहचानने के लिए अवसर खोल के, सदैव खोल के रखना है। कभी बंद नहीं करना है उनके लिए दरवाज़ा। ओके, कभी उनको समझाने में पीछे नहीं हटना है। चाहे गीतों से समझाइए, चाहे आवाज़ देकर समझाइए, वचनों की आवाज़ ऊंची करके समझाइए, चाहे परमेश्वर के दास दासी जब प्रचार करते वो आवाज़ से सुनाइए, चाहे आप किसी के पास जाके बैठकर सुनाइए। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स। ओके, मनुष्य जब विरोध कर रहा है तो उससे दूर मत भागिए, ठीक है? विरोध इट्स ओके, लेकिन जब आपको शैतान आड़े आ जाता है तो क्या बोला है? लताड़ो उसको, कुचलो उसको रौंद दो उसको। हाँ, तो ये बहुत सभ्यता का शब्द लगता है क्या आपको? ये नम्रता का शब्द लगता है? तू नागरसिया को लताड़ेगा, भद्दा शब्द लगता है ना? और तो जवानसी और अजगर को लताड़ेगा, कुचलेगा, रौंदेगा। तो नाग और सिंह को लताड़ेगा, तो जवान सिंह और अजगर को कुचलेगा, भद्दा शब्द लगता है। इसमें नम्रता दिखती है ना? तो मसीही के दो फेसेस आपको समझ में आना चाहिए। विरोधियों के लिए
दो पोर्शंस आपके पास है। मनुष्य के लिए आप नम्र हो कि वो मन फिराने तक आप हियाव रख सकते हैं, आप सहनशील रख सकते हैं। शैतान के लिए थप्पड़ लगाने के लिए तैयार रहो। हाँ, जब घुटने टेकते हो ऐसे दे दो उसको लेफ्ट एंड राइट, ओके, कि वो भी हैरान हो जाए कि छोड़ो छोड़ो, बस 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 बस, अब इसके आगे इसके पीछे नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन मनुष्य क्या करेगा? जो विरोध कर रहा है वो क्या करेगा? वो दोबारा उन दुष्ट आत्माओं को दोबारा गैदरिंग करके लेकर आएगा। लेकिन दुष्ट आत्मा को बहुत भले तरह से पता है कैसे उन्होंने खाए हैं हमारे लेफ्ट एंड राइट। समझ में आया? तो आप किसको वायलेंट एग्रेसिव हो जाते हैं? शैतान के कामों को नहीं, शैतानी आत्माओं के ऊपर। हाँ, शैतानी शक्तियों के बारे में आप वायलेंट और एग्रेसिव रहना है, ठीक है। लताड़ना आपको क्या लगता है? मुझे समझाइए, आप लताड़ना क्या लगता है आपको? आपको बहुत प्यारा शब्द लगता है कि एक कमॉन दोस्तों में जब आप खड़े रहते हैं, सहेलियों में, रिश्तेदारों में, हाँ, आप उनको नम्रता दिखाते हैं और लताड़ते हैं, दोनों में फर्क क्या रहता है? हाँ, क्या प्यार से कैसे लगता है? आप कैसे बर्ताव दिखाएंगे? आप पहचान सकते हैं ना नम्रता का बर्ताव जब दिखा रहे हैं, तो आप उसके नाम को, टाइटल को देके बता सकते हैं, अरे मैं तो इतना नम्रता से तुमसे बातें कर रहा हूँ, तुम क्यों उखड़ रही हो मेरे से? हाँ, तुम क्यों गुस्सा हो रही हो मेरे पर? मैं तो इतनी नम्रता के चाल चलन दे रहा हूँ। यानी आप नम्रता को जानते हैं, उसका तौर कैसा है, उसका तरीका कैसा है पेश करने का, है ना। और लताड़ने का तरीका भी आप समझते हो, क्योंकि सामने वाला जब आपको लताड़ने जैसा बर्ताव करता है, आपके नम्र होने का ठेस आपको लगता है। हाँ, आपकी नम्रता को ठेस लग जाती है, तो आप डायलॉग क्या निकालते हैं? मैं तो इतने अच्छे से आपसे बर्ताव कर रही हूँ, आप क्यों मुझे लताड़ रहे हो, आप क्यों मुझे कुचल रहे हो? तो इसका मतलब क्या हो गया? आप समझ सकते हो वायलेंट एग्रेसिव रहना क्या है, जो आपके नम्रता के दायरे में नहीं रहता है वो। अगर आपके नम्रता के दायरे में अगर कोई आपके साथ भी नम्रता के व्यवहार करे, तो आप ऐसे डायलॉग बोलेंगे क्या? मैं नम्रता से बिहेव कर रही हूँ, हाँ, मैं सहनशीलता से बिहेव कर रही हूँ, आप क्यों सहनशीलता से बिहेव कर रहे हैं मुझे? ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं। समझ में आया? आप जब नम्रता का बिहेव है उसको टक्कर कोई मारता है, तो वो दुष्टता से टक्कर मारता है। हाँ, वो क्रूरता से टक्कर मारता है। हाँ, वो वायलेंट होकर टक्कर देता है, एग्रेसिव होकर टक्कर देता है। समझ में आया? तो आपका वायलेंट होना, एग्रेसिव होना जायज़ है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुमको सांपों और बिच्छुओं के ऊपर अधिकार दिया है, तुम उसे रौंदोगे, कुचलोगे। आमीन। दुष्ट आत्माएं सीधे मुंह बात करके निकलती नहीं है। समझा? मैंने कोई ऐसा डिलीवरेंस मिनिस्टर नहीं देखा जिसने आवाज चढ़ाकर दुष्ट आत्मा के सामने बात ना की हो। मैंने कोई देखा नहीं ऐसा, मैंने नहीं देखा। आप जो बोलना चाहो मुझे बोलिए, ओके, लेकिन मैंने कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है और नम्रता की भाषा से निकाल रहा है। कम ऑन, बकवादी है वो मतलब बकवास है वो, बकवादी नहीं, माफ़ कीजिए मुझे, बकवास है ऐसा कहना, ओके। क्योंकि दुष्ट आत्माएं सीधे रास्ते नहीं निकलती है। हाँ, उनके फ़ायदे मनुष्य के अंदर के हैं। हाँ, वो अपने फ़ायदे छोड़कर जाना नहीं चाहती है, उनको छुड़वाना पड़ता है, उनके साथ अच्छे से मुकाबला में उतरना पड़ता है, पूरी तरह से जंगी मुकाबला करना पड़ता है उनके साथ। हाँ, ओके। तो ये मत सोचिए आप कि हमारा वायलेंट होना, एग्रेसिव होना नाजायज़ है। कम ऑन, ये नाजायज़ नहीं है, ये हमारा अधिकार है। हमने अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को निकालने का कमांडमेंट है हमारे ऊपर। हालेलुया, ये कमांडमेंट है हमारे ऊपर। तो विरोधियों का सामना जब करते हैं तो दो प्रकार आपको फाइनलाइज करके रखना पड़ता है। विरोधी, ये एक तो मनुष्य है, उसके लिए आपका व्यवहार नम्रता का धारण करना पड़ता है। और
उस विरोधी को भड़काने वाला, भरने वाला और भक्तिपूर्ण जीवन जिलाने वाला उसके अंदर बैठा हुआ कौन है? दुष्ट आत्मा है। दूसरा पार्ट है उसका, समझा? जब आप दुष्ट आत्मा को लताड़ते हैं ना, तो चलो आप विरोधी के सामने मुंह के ऊपर उसको कुछ मत बोलो, क्योंकि विरोधी नहीं जानता है ये कि दुष्ट आत्मा उसके अंदर बिठा के वो ये काम कर रहा है, ये वो नहीं जानता है। उसको तो दुष्ट आत्मा के साथ बैठना मज़ेदार लग रहा है, उसको पार्टी मनाने जैसा लगता है। दुष्ट आत्माओं के साथ बैठ के हमको सताना उसको तो मज़ेदार लगता है, पार्टी लगती है उसको। वो थोड़ी उसके विरोध में जा रहा है, वो तो उसके दोस्त में बैठ के आराम से उसको लेके बैठा है उसके अंदर। तो अब आप अगर उसको डांटने जाओगे, उस विरोधी को डांटने जाओगे क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा बैठा है, तो वो विरोधी थोड़ी सुन के लेने वाला है। उस विरोधी के साथ साथ वो दुष्ट आत्मा भी उसके अंदर से आपका विरोध करेगी। तो दो ताकतें आपके विरोध आ जाएंगे। एक तो वो मनुष्य भी आ जाएगा क्योंकि आप उसके दोस्त जो दुष्ट आत्मा है उसके अंदर बैठी हुई, आप उसको डांट रहे हैं, तो वो विरोधी का शरीर भी तगड़ा रहेगा और वो आत्मा भी तगड़ी रहेगी, और फिर दोनों मिल बांट के आपका विरोध करेंगे। समझ में आया? तो आपको मनुष्य के साथ सामना नहीं करने के लिए इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, ओके, आपने विरोधियों के लिए क्या करना चाहिए? नम्रता को धारण करना है, ठीक है? लेकिन दुष्ट आत्मा को अकेले बैठ जाओ घर के अंदर, घुटना टेक दो, प्रभु भोज लो, परमेश्वर के वचन को कबूल करो कि यीशु का पुनरुत्थान का सामना जो कर नहीं सका, उस दुष्ट आत्मा, मैं तेरे सामने ये रोटी को उठाती हूँ, ये तेरे सामने मैं यीशु का लहू उठाती हूँ, यीशु का देह उठाती हूँ और मैं तुझे दिखाती हूँ। अगर तू इसका सामना नहीं किया पुनरुत्थान होने के समय में, तो फिर तू मेरा भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वही वाला आत्मा मेरे अंदर मौजूद है। अब मैं तेरे से फाइट कर रही हूँ, जल्दी तू मेरा पीछा छोड़ दे, जल्दी से छोड़ दे तू, ओके? और जब आप इस प्रकार से अपना स्टैंड लेते हैं ना, तब उसको बराबर से देते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तुझे मैं आज्ञा दे रही हूँ, निकल जाए यीशु के नाम में, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इस प्रकार के फिर आपके शब्द की कड़ाई, मजबूती आप उंडेलना शुरू करते हैं, हाँ? और वो दुष्ट आत्मा जिस इंसान के अंदर बैठा हुआ है वो तड़पने लगता है उस समय, हाँ, उसकी हालत खराब होने लगती है उस समय, और वो इंसान समझ नहीं पाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ओके, उसको लगता है अरे रे मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, अरे रे मुझे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अरे रे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अरे पता नहीं चल रहा है क्या। अरे कम ऑन, कुछ नहीं हो रहा है। जो दुष्ट आत्मा है उसको फाइट दे रहे हैं हम, समझा? इसके लिए हम विरोधियों का सामना शरीर से जाकर शरीर की ताकत को छेड़कर नहीं करते हैं। शरीर के अंदर हम नम्रता धारण करते हैं, घुटनों के बल बैठकर हम शैतान को लताड़ते और कुचलते हैं। समझ में आया आपको? और ये तरीका मैं आपको बताना चाहती थी, इसके लिए मैंने आपको बोला ये वचनों को हिंदी में जब मैं बताऊंगी तब आप सुन लीजिए। अब इतनी सारी बातें अगर इंग्लिश में बोल दी फिर हिंदी में आप समझ नहीं पाओगे, इसके लिए मैंने इकट्ठे यहाँ पर बता दी, ठीक है? और देखिए यहाँ पर क्या है कि आप मनुष्य को कभी भी इनकार मत करो। देखो, जब दुष्ट आत्मा उनके अंदर से काम कर रही होती है ना, तो वो मनुष्य और वो दुष्ट आत्मा मिल बांट के खा पी रहे होते हैं, मिल बांट के एक दूसरे के साथ आराम से जीवन जी रहे होते हैं। उनको ज़रा भी लज्जा नहीं रहती है उसके विषय में, ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं रहती है उनके विषय में। समझ में आया? तो उनके काम आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कहाँ मैं इनको मन फिराव के लिए सोचूं, मैं तो सोचूं इनके सारे टुकड़े टुकड़े करके खिला दूं कौवों को। ओके, इतना बदतर जीवन वो जी रहे होते हैं। ओके, बिल्कुल आपको उनके रहम करने का मन नहीं होगा, बिल्कुल उनको देखते आपकी ऐसी नफरत की झड़ी चढ़ जाती है कि आपको लगता है अभी जाके मैं उसको 1-2-3 थप्पड़ चढ़ा कर आ जाऊं। ओके, ऐसा हो जाता है क्योंकि उनके बर्ताव घिनौने होते हैं, उनके हरकतें घिनौनी होती है। समझ में आया? तो इसके लिए हम उनको अवसर नहीं, हम सीधा बोले कम ऑन लॉर्ड पिकअप, बस हो गया। उठा ले उनको, काफ़ी हो गया। आया समझ में? तो हम उनके अंत की ज़्यादा तमन्ना रखते है ना। हम बोलते हैं खत्म करो खत्म करो खत्म करो, खुदा खत्म करो उनको, ओके बस करो बस करो। तो एएनएम मिनिस्ट्री का वचन जब बांट रहे थे
प्रेरित जी तब उनके मुंह से सुना तो मुझे बहुत हंसने को आया कि आप तो शैतान के काम आप करके दे रहे, शैतान उनको उखाड़ना चाहता है तो फिर उनको उखाड़ने का काम तो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, शैतान का प्रॉफिट करा के दे रहे हैं आप ऐसे करके। ओके, तो आपने क्या करना है उनको, आप जब ऐसे कर रहे होते हैं कि उनको उखाड़ दे उखाड़ दे उखाड़ दे तो पूरी पृथ्वी को खाली कर देंगे आप। ओके, जब मैंने ये वचन सुना तो मुझे इतना अजीब फील हो गया कि सच में खुदा बाप इतने घिनौनी हरकत मैंने ज़िंदगी में कभी देखी नहीं थी। ये एरिया में आके मैं इतनी गंदी हरकतें देख रही हूँ। खुदा बाप अब इनका अंत मैं इसीलिए मांग रही हूँ क्योंकि मुझसे सहा नहीं जाता है इनकी गंदे हरकत, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है इनकी गंदे काम। ओके, मुझे घृणा फील होती है इनके बारे में। ओके, तो इसके लिए प्रभु मैं तुझसे विनती करती हूँ, उठा ले इनको, जल्दी से जल्दी उठा ले इनको, ख़त्म कर इनकी बातों को, ख़त्म कर, या तो आर या पार कर दे, या तो वो प्रभु में आए या फिर ख़त्म हो जाए उनका लाइफ यहाँ से। ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है ये। समझ में आया? आप इन विरोधियों की हरकतें कभी ऐसे भी रहती है कि आप बर्दाश्त के बाहर हो जाता है उनका काम। ठीक है, तो आप उनके लिए मृत्यु के अलावा दूसरा कुछ नहीं मांगते, आप यही मांगते हैं कि बस ख़त्म करो लॉर्ड, ख़त्म करो, बस हो गया, बस हो गया, इनके ऊपर मैं रहम नहीं दिखा सकती हूँ। ठीक है, तो आपने कल पढ़ा ना यिर्मयाह के वचन को भी, वो भी यिर्मयाह क्या कह रहा था जलजलाहट में भर के वो कह रहा था उनका ऐसा कर दे, उनका वैसा कर दे, उनको ये कर दे, उनको वो कर दे। ओके, और वहाँ दूसरी तरफ परमेश्वर ने तो वो बोलने से पहले ही सोच के रखा था, अगर ये लोगों ने मन नहीं फिराया तो मैं इनकी तो ऐसी की तैसी करने के लिए बैठा ही हूँ। तो यिर्मयाह को नहीं मालूम था, यिर्मयाह तो बोल रहा है तू इनकी ऐसी तो वैसी कर ही दे परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर जब यिर्मयाह को सताने वालों को देख रहा था तभी परमेश्वर ने प्लान कर लिया था, मैं तो इनकी ऐसी की तैसी करूँगा अगर ये मन नहीं फिराएंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, यिर्मयाह तो बोल रहा है लॉर्ड उनकी ऐसी की तैसी कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे, और वहाँ पर परमेश्वर कहता अगर मन फिराया तो नहीं करूँगा। यही होता है हमारे साथ। समझ में आया? जब हम बोलते हैं लॉर्ड बस 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 दी एंड, बस ख़त्म कर, मुझे नहीं चाहिए ये गंदगी नहीं चाहिए, आर नहीं तो पार कर दे, और वहाँ पर परमेश्वर इंतज़ार करता है क्या वो मन फिरा रहे? तो मेरे पास तो उनके लिए दूसरी प्लान, तेरे कहने से पहले जैसे ही तेरे ऊपर उन्होंने अटैक लगाने की सोची थी वहीं से मेरे आंखों के पुतली को उन्होंने टच किया है और मैं उनके विरुद्ध जल उठा हूँ। अगर उन्होंने मन नहीं फिराया तो मैं तो अब बैठा ही हूँ उनकी ऐसी की तैसी करने के लिए। तो आप प्रार्थना करें वो तो अलग बात हो गई, लेकिन परमेश्वर उनके इंतज़ार में रहता है कि अगर इन्होंने मन फिराया ठीक है, नहीं फिराया तो फिर उनकी हालत ख़राब। समझा? तो हमारे प्रार्थना करने ना करने से पहले परमेश्वर उनको अपॉर्चुनिटी रखता है, अवसर रखता है मन फिराने का। अगर उनको पश्चाताप आ गया, हाँ, अगर उन्होंने कैच कर लिया पश्चातापी जीवन को, बच गए, नहीं कैच किया ख़त्म है फिर। तो आपने प्रार्थना किया इसके लिए हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। किस लिए हुआ वो? क्योंकि परमेश्वर ने हमको सताने का उन्होंने प्लान रच लिया, वो सोच ले लिया, उसी क्षण परमेश्वर ने भी प्लान कर लिया इनका क्या करना है। समझ में आया? तो हम प्रार्थना करें या ना करें उनके विरोध में, जलाहट में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर ने हमारे पहले ही उसकी जलाहट में उसने जो प्लान किया है वो पड़ता है उनके ऊपर। समझ में आया? हम दुष्ट आत्माओं के साथ फाइट करते हैं, मनुष्यों के साथ नहीं। हाँ, हम मनुष्यों के बारे में भले ही 1000 बातें बोल दे, ये वो ऐसा वैसा, कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पहले परमेश्वर का प्लान आगे जाता है उनके लिए, वो मन फिराव के लिए है या नहीं। समझ में आया? तो हमारी बकवास हो जाती है और परमेश्वर जीतता है उनके बारे में। अगर मन फिराया वो लोग तो बच जाते हैं, वो लोग सही ढंग से हो जाता है सब कुछ उनका। मन नहीं फिराया तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हम बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमने किया प्रार्थना या नहीं किया, परमेश्वर खुद उनका निकाल देता है सब, लेफ्ट एंड राइट। समझ में आया? तो इस तरह से हमारे युद्ध का वातावरण हमको समझ के साथ करना है।
मनुष्य के कारीगरी हमको पसंद नहीं आती है। दुष्ट आत्मा उनके अंदर दोस्ती में बैठा हुआ रहता है। इसके लिए अगर हम मनुष्य को आमने सामने विरोध करने जाएंगे तो मनुष्य अपनी ताकत भी लेगा और दुष्ट आत्मा भी उसके अंदर से ताकतवर रहेगा और आपका विरोध करना उनको और आज़ादी से काबिलियत में हो जाएगा। ओके, तो आप वैसा नहीं कर रहे हैं। मनुष्यों को नम्रता से पेश आइए ताकि खुद वो परमेश्वर से मन फिराव का मन प्राप्त कर ले और सच्चाई को पहचाने। और दुष्ट आत्माओं को घुटने लगा दो और दे दो लेफ्ट एंड राइट। ओके, एग्रेसिव होके, वॉयलेंट होके निकाल दो उनको। मैं आपको बोलती हूँ, दुष्ट आत्मा के साथ सीधी बात नहीं चलती है माय डियर फ्रेंड्स, वो झगड़े चलते हैं, झगड़े। ठीक है, अगर आपको मसीही लोग कैसे झगड़ते हैं मालूम नहीं रहेगा ना, तो आप डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में एक बार जाके बैठ जाइए और देखिए अकेले में वो पास्टर किस प्रकार से झगड़ रहा होता है दुष्ट आत्माओं के साथ। तभी जाके दूसरे दिन प्रचारक पुलपिट पे आके जीत का झंडा लहराते हैं। समझ में आया? ये झगड़े का वातावरण, ये बहुत मनभावन वातावरण नहीं रहता है, ये झगड़े का रहता है। और झगड़े में दुष्ट आत्माएं भी झगड़ने में खड़ी रहती है और हम भी झगड़ने में खड़े रहते हैं। हम अपने अंदर से परमेश्वर के आत्मा के द्वारा और दुष्ट शक्तियाँ दुष्ट आत्माओं के द्वारा। ठीक है, तो ये युद्ध रहता है और इस युद्ध को जीतना पड़ता है। इसके बिना छुटकारे नहीं आते हैं, इसके बिना पापों के माफ़ी के ऊपर अपना मन नहीं आता है, इसके बिना कोई मसले सुलझते नहीं हैं। ठीक है, तो ये दो वचन हमको समझ में आए और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। ओके, इसके लिए हमको विरोधी मनुष्य के ओर से जब हो तो विरोध को हमने सहकर उनके सामने नम्र रहकर उनको रास्ते देते रहना है कि वो सच्चाई को मान ले और प्रभु यीशु के सिद्ध इच्छा में प्रवेश कर सके। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। धन्यवाद पवित्र आत्मा की, इतना गहरा बात है खुदा परमेश्वर जिसके बारे में लोग चर्चा करना पसंद नहीं करते हैं। इसके लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं कि जो हमको करना चाहिए उसकी तरफ हमने भी पिता परमेश्वर अपने मुंह खोलकर चर्चा करके हम अपने विश्वासी भाई बहनों को सही रास्ता पिता परमेश्वर दे पाए। अनुग्रह कर हमारे ऊपर, हम पर अनुग्रह कर पिता। तेरे वचनों से हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना में डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन।